Hello, my dear friends. My name is Sakshi Gupta and I am your SST educator. Today, I will explain you the second chapter of class 7th and this is from Civics. This chapter name is Role of the Government in Healthcare. Lesson in brief. Your first point is healthcare. Next, education. Next, water management and irrigation. And last point is land reforms and housing schemes. Turn up. Why do you think government hospitals are crowded than private ones? Because they are cheaper. Next, let's start with introduction. Private health facilities are much more expensive than public health facilities. In your opinion, how can healthcare be made more affordable? जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज होती हैं वो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज को देखते हुए बहुत ज्यादा महंगी होती हैं, तो आपकी राय में ऐसा क्या करना चाहिए जो हेल्थ केयर अफोर्डेबल हो जाए? नेक्स्ट इज द कलेक्शन वेल्थ ऑफ अ कंट्री इज टर्म्ड as its resource which can be natural materials and human beings. The primary functions of any government is to make an assessment of the available resource, analyze and plan their effective use for the welfare of the citizens of the country. Just as there is a division of power between the central and state governments in India, there also exists a division of national and state resources. A crucial activity of state governments is therefore to engage in resource planning and resource allocation that would suit needs of the state people. कि जो एक कंट्री की कलेक्टिव वेल्थ होती है वो ही उस कंट्री के लिए उसका रिसोर्स होते हैं, वो जैसे कि या तो नेचुरल मटेरियल हो या ह्यूमन बींग्स हो. जो प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी गवर्नमेंट का वो होता है जो लोगों को उपलब्ध जो रिसोर्स है उनका आकलन करना, उनका प्रभाव, उनके बारे में सिटीजन्स को, देश के नागरिकों को जानकारी देना. जैसे कि डिवीजन एक पावर बिटवीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की जो पावर होती है, वैसे ही नेशनल स्टेट रिसोर्स के बीच भी डिवीजन होता है, विभाजन होता है. सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या होती है स्टेट गवर्नमेंट की कि रिसोर्स प्लानिंग करना, रिसोर्स एलोकेशन करना और इनको स्टेट पीपल तक पहुंचाना. Council of Ministers takes most of decisions related to the resource of a state. Ministers carry out a thorough study on the needs of the people and discuss all the related issues in the meetings. On the basis of the discussion, the proposal is given the shape of bill, which is placed in Vidhan Sabha to convert it into a law. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि जो मंत्री परिषद होता है वो ही इनसे रिसोर्स से रिलेटेड निर्णय लेता है. ज्यादातर मिनिस्टर्स क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं और लोगों की जो जरूरतें होती हैं उसके बारे में, उन मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं अपनी मीटिंग्स में, और इसी के आधार पर जो डिस्कशन में जो प्रपोजल दिया जाता है उसको एक बिल के आकार में विधानसभा में दिया जाता है जो कि लॉ के रूप में बदल जाता है. Minister of the concerned department collects the information on the needs of the people from the officers involved in day-to-day administration. जो हमारी प्रतिदिन का जो प्रशासन होता है उसमें मिनिस्टर्स क्या करते हैं, एक कंसर्न डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और जो लोगों की नीड होती है उन सभी को पूरा करने में हेल्प करते हैं. स्टेट गवर्नमेंट हैज टू ब्रिंग अबाउट अ हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. द गवर्नमेंट विल डिसाइड द प्रायोरिटी after keeping the directive principles in view. The government must try to promote social justice and to minimize the inequality by creating more opportunities of employment. जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ में हायर रेट यानी उच्च रेट के बारे में लाती है. जो गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको क्या प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और जो गवर्नमेंट है उसको क्या क्या कोशिश करनी चाहिए जिससे जो सोशल जस्टिस है या फिर जो मिनिमाइज इनइक्वालिटी है उससे अनएम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज बनाई जा सके. द गवर्नमेंट ट्राइज टू अट्रैक्ट capitalists to the resource so that they may build factories in the backward regions. They are given some incentives for this purpose by the government. The main motive of the government is to bring about development of the area. जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो रिसोर्स से बैकवर्ड जो रिजाइन, जो बैकवर्ड यानी पिछले इलाके होते हैं उनमें फैक्ट्रीज बनाती है. वो कुछ उद्देश्य भी करती है गवर्नमेंट के जो पूरे किए जाते हैं. उनका मेन उद्देश्य होता है गवर्नमेंट का अपने एरिया में विकास करना. जो उनके कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं स्टेट पॉलिसी के वो क्या होते हैं
टू हैव फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड मटेरियल रिसोर्स अमंग ऑल क्लासेस, यानी कि जितने भी वर्ग हैं सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ मटेरियल का, टू इंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एज वेल एज वुमेन, एक समान काम के लिए महिलाओं और पुरुषों को एक समान वेतन प्रदान किया जाना चाहिए। टू मेक प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल, हर किसी को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ में इम्प्रूव होना चाहिए। टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा जो स्टैंडर्ड है लिविंग रहने का और खाने का उसको हमें बढ़ाना चाहिए। टू प्रमोट एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो पशुपालन होता है एग्रीकल्चर कृषि होती है उसको बढ़ावा देना चाहिए। टू सिक्योर द राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट टू द एम्प्लॉयमेंट एज्ड एंड डिसेबल्ड, जो अधिकार होते हैं किसी काम को लेकर, शिक्षा को लेकर या फिर पब्लिक असिस्टेंट को लेकर, उन सभी को सुरक्षा करनी चाहिए। टू प्रोवाइड मैटरनिटी रिलीफ टू वर्किंग वुमेन को मैटरनिटी रिलीफ प्रदान करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, जो हमारी राष्ट्रीय महत्व है उसके लिए जो ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द इंटरेस्ट इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो शेड्यूल एससी कास्ट होती हैं या एसटी कास्ट होती हैं उन सभी को सेफ गार्ड और प्रमोट मिलना चाहिए। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर। हेल्थ मीन्स द एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज, हेल्थ का मतलब होता है जो हमारी इंजरीज होती हैं, इलनेस होती है उस सभी से मुक्ति। बट हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट डिसीज, लेकिन जो हेल्थ होती है वो सिर्फ बीमारी से नहीं होती। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, गुड सैनिटेशन, हाइजीन एंड पॉल्यूशन फ्री एंड स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट आर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स गुड हेल्थ। एक अच्छी हेल्थ क्या होती है? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, गुड सैनिटेशन, हाइजीन एंड पॉल्यूशन फ्री और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, इन सभी एक अच्छी हेल्थ के फैक्टर्स होते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन advise that every state should raise the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its priority duties। हमारे संविधान में ये एडवाइस दी गई है कि जो हर राज्य है उसको अपने न्यूट्रिशन के लेवल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लेवल अपने लोगों के हिसाब से इम्प्रूव करनी चाहिए, जिससे कि जो पब्लिक हेल्थ है और ये पब्लिक हेल्थ उसकी प्राइमरी ड्यूटीज में आना चाहिए। हेल्थ केयर इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी स्टेट, जो हेल्थ केयर होती है भारत में वो हर किसी स्टेट की खुद की जिम्मेदारी होती है। हेल्थ केयर सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एज वेल, जो हेल्थ केयर सर्विस है वो जैसे सरकारी की तरह प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ एक्सपेंचर्स are jointly shared by the central and state government, also takes the assistance of NGOs to implement various public health care programs। जो पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, पब्लिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जॉइंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसमें उन्होंने एनजीओ को भी शामिल किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेट्स गोल्स एंड प्लान्स द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट्स टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विस एंड हेल्थ एजुकेशन। The state government runs healthcare centers, dispensaries and hospitals in the rural and urban areas free of cost or at low rates। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक लक्ष्य सेट किया है कि जो पॉलिसीज हैं स्टेट्स की वो उसके अकॉर्डिंग सभी को हेल्थ सर्विस और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड हो। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हेल्थ केयर सेंटर्स, डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स भी चलाती हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते तो उनके रेट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लो होते हैं। Each state implements the policies of the National Rural Health Missions (NRHM) to improve the availability of good quality health care for people, especially those residing in rural areas, the poor। जो हर स्टेट का अपनी पॉलिसी होती है, जैसे कि जो NRHM है यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ सर्विस को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज्यादा उपलब्ध कराए हैं अच्छी मात्रा में, चाहे वो कोई गरीब हो, महिला हो या बच्चे हो। Their goals are reduction in infant and maternal mortality rate।
prevention and control of communicable and non-communicable disease and promotion of healthy lifestyle। उन्होंने क्या किया, उनका लक्ष्य है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, और एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोशन करना। To attain these goals, the state government trains health workers and prepares health plans for every village. The state government also ensures adequate and regular supply of essential medicines and equipment। इन सभी गोल्स को पूरा करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन किया है और एक हेल्थ प्लान प्रिपेयर किया है, जिससे कि वो हर गांव में एक अच्छी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करा सकें। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उन्होंने खुद से ये भी इंश्योर किया है कि जो आवश्यक मेडिसिन होती है या आवश्यक इक्विपमेंट होते हैं उनकी रेगुलर सप्लाई हो। हेल्थ सर्विस इन इंडिया लाइक लिंक्स ऑन अ चेन। जो हेल्थ सर्विस होते हैं इंडिया में वो एक लिंक्स होते हैं चेन की तरह। एट द प्राइमरी और विलेज लेवल देयर आर प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स फॉर द विलेजेस। देयर आर क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड नर्सेस इक्विप्ड to treat minor illness, seriously ill patients are sent to district hospital। कि जो विलेज लेवल पर हॉस्पिटल होते हैं उसमें अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स और नर्स रखे जाते हैं ताकि वो जो माइनर इलनेस होती है उसको ट्रीट कर सके, और जो ज्यादा ही सीरियस होता है, सीरियस बीमारी होती है, उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज सके। ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स हैव हॉस्पिटल्स व्हिच आर मेडिकली इक्विप्ड एंड हैव ट्रेन्ड पर्सनल्स। These hospitals supervise the village health centers and cater the village and the urban population of the district. Medical college hospitals and specialized hospitals are located in the urban areas. They have modern facilities for investigation, diagnosis and treatment. Medical college hospital या फिर स्पेशल हॉस्पिटल जो कि अर्बन एरियाज में स्थित होते हैं, वो उन पर क्या होती है, उन सभी के पास मॉडर्न फैसिलिटीज होती हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। पब्लिक हेल्थ एट विलेज लेवल। At the village level, there are village health and sanitation cells consisting of panchayat members, Anganwadi workers, teachers, and the community health volunteers. Village health and sanitation samitis are set up where the population has a strength of 1250 to 1500. Every samiti gets a grant of 10,000 per year for carrying out household surveys, preparing village health plans, organizing and health camp sanitation drives, chlorination of drinking water source and regular cleaning and tunnel painting of reservoirs। जितने भी विलेज लेवल पर विलेज हेल्थ सैनिटेशन समितिज होती हैं, पंचायत मेंबर होते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं, टीचर होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स होते हैं। जो विलेज हेल्थ और सैनिटेशन समिति होती है उन सभी को वहां की पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ जहां की 1250 से लेकर 1500 हो, वहां पर विलेज हेल्थ और सैनिटेशन समिति को सेट किया जाता है। हर समिति को लगभग 10,000 रुपए साल हाउस होल्ड सर्वे के लिए दिए जाते हैं ताकि वो विलेज हेल्थ प्लान प्रिपेयर कर सकें, हेल्थ कैंप, सैनिटेशन ड्राइव, क्लोरिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, रिसोर्स और रेगुलर क्लीनिंग एंड टनल पेंटिंग्स ऑफ रिजर्वेशन पर एक कैंप लगा सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें। Drawbacks. The public healthcare service have following drawbacks in spite of all efforts made by the government due to various reasons। जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस होती है उन सभी में इतने ड्रॉबैक्स होते हैं, इतने एफर्ट्स बनाए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा जो कि विभिन्न रीजन से होते हैं, जैसे कि फंड प्रोवाइड बाय द अथॉरिटीज आर वेरी लेस एंड डू नॉट रीच ऑन टाइम एंड दस रिमेन अनयूटिलाइज्ड। जो अथॉरिटीज द्वारा जो हमें फंड्स प्रोवाइड किया जाता है वो समय पर नहीं पहुंच पाता, इसलिए उसका कोई यूज नहीं होता। ह्यूज शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड, स्किल्ड एंड डेडिकेटेड डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ इन रूरल एरियाज। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पर एक अच्छा स्टाफ, अच्छे डॉक्टर्स, ट्रेन डॉक्टर्स, स्किल्ड डॉक्टर्स, डेडिकेटेड डॉक्टर्स नहीं होते। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की कमी होती है। इनएडिक्वेट नंबर ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। नेक्स्ट, पुअरली मेंटेन्ड इक्विपमेंट्स इन PHCS इन विलेजेस। जो विलेज होते हैं उसमें इक्विपमेंट्स को पुअरली मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट इज इन्फोविट। Considering the high cost involved in medical education and setting practice, do you think that doctors are justified in preferring to settle in cities in foreign countries? Next is private healthcare services. Private healthcare services have increased tremendously in the past few years. जो लास्ट कुछ साल गए हैं उनमें जो पब्लिक
प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस है वो उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 75% ऑफ हेल्थ केयर इज नाउ प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स। 75% हेल्थ केयर जो है वो अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। देयर आर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट क्लिनिक्स ऑफ डॉक्टर्स। वो क्या होते हैं? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं और डॉक्टर्स के प्राइवेट क्लिनिक होते हैं। द प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर मॉडर्न, क्लीन एंड अट्रैक्ट द मिडिल क्लास एज वेल एज द रिच। जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वो मॉडर्न होते हैं, क्लीन होते हैं और जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनको उसी प्रकार अट्रैक्ट करते हैं जैसे कि रिच लोगों को। मोस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर नॉट वेरी क्लीन एंड अट्रैक्ट द मिडिल क्लास एज वेल एज द रिच। जबकि जो मोस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वो क्लीन भी नहीं होते और मिडिल क्लास को उसी प्रकार से अट्रैक्ट नहीं करते जैसे कि रिच को। मोस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर नॉट वेरी क्लीन एंड डिसऑर्गेनाइज्ड। जो ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सो पीपल प्रेफर गोइंग टू प्राइवेट हॉस्पिटल। तो इसलिए लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल में। हाउएवर, हालांकि प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर मोस्टली फाउंड इन सिटीज। जो प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती है वो ज्यादातर शहरों में पाई जाती हैं। देयर आर एक्सपेंसिव एंड हेंस अ कॉमन मैन कैन नॉट अफोर्ड इट। ये बहुत ज्यादा महंगी होती है और एक सामान्य व्यक्ति इनको अफोर्ड नहीं कर सकता। Only if there is a public-private partnership, we may be able to achieve the dream of providing equality healthcare to all. Apart from healthcare, अगर हम healthcare से अलग होकर बात करें, the government is involved in other fields of public welfare as well. जो गवर्नमेंट होती है वो अदर फील्ड में भी इसी प्रकार से इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट इज ऑल्सो इन्फोबिट्स, विच इंडियन स्टेट हैव बीन सक्सेसफुल इन implementing various public welfare schemes. Next is education. Education for every Indian citizen is on the priority of the government. हर किसी के लिए एक शिक्षा का अधिकार या शिक्षा गवर्नमेंट की सबसे पहली प्रायोरिटी है। आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21A में has made a provision for free and compulsory education for all children up to age of 14 years. जिन बच्चों की एज 14 साल से कम है उन सभी के लिए फ्री शिक्षा का एक प्रोविजन उन्होंने बनाया हुआ है। As education में plays an important role in improving the socio-economic condition of the people, governments have made in provision and schemes so that everybody is able to get education. जो एजुकेशन होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में। गवर्नमेंट क्या करती है? प्रोविजन बनाती है, स्कीम बनाती है ताकि हर किसी को एक अच्छी शिक्षा मिल सके। स्टेट गवर्नमेंट हैव ओपन्ड द प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, colleges and institutes of higher learning at different levels, place, town, city and district level. Next is सर्व शिक्षा अभियान, SSA. सर्व शिक्षा अभियान is an Indian government and program aimed at universalization of elementary education in a time-bound manner as mandated by the 86th Amendment to the Constitution of the India, making free education compulsory for the children between 6 and 14 years. It is operational since 2000 to 2001. जो सर्व शिक्षा अभियान है वो भारतीय सरकार द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है जिससे क्या होता है, जो एलिमेंट होते हैं एजुकेशन को उनके लिए एक टाइम बाउंड मैनर किया जाता है। इसको 86 से संशोधन द्वारा एक भारतीय संविधान में अपनाया गया है और इससे क्या हुआ कि इन्होंने एक फ्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन जिन बच्चों की आयु 6 से 14 वर्ष के बीच में उसके लिए एक लॉ बनाया और उसको 2000 से 2001 के बीच में चलाया। नेक्स्ट इज इन्फोविट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशनल आंगनवाड़ी सेंटर्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। टू अचीव द टारगेट, अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स आर ओपनिंग स्कूल्स इन द प्लेसेस व्हिच डू नॉट हैव स्कूल। स्टेट गवर्नमेंट वहां स्कूल खोल रही है जहां पर स्कूल नहीं है। Also existing school are being strengthened through additional classroom, toilets and teacher training programs. वो क्या करते हैं, इसी के अलावा स्कूल में क्या तैयार करते हैं? एडिशनल क्लासरूम, टॉयलेट्स, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, लाइफ स्किल, गर्ल एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन and education for the children with special needs are the other components of SSA. ऐसे लाइफ स्किल हो गया, गर्ल्स एजुकेशन हो गया, कंप्यूटर एजुकेशन हो गया, फिर ऐसे बच्चों के एजुकेशन जिनको स्पेशल नीड की जरूरत है वो भी SSA का एक अलग हिस्सा है। द प्रोग्राम हैज फॉलोइंग की फीचर्स। इस प्रोग्राम के जो की फीचर्स हैं वो क्या हैं? प्रोग्राम विद ए क्लियर टाइम फ्रेम फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। प्रोग्राम के लिए क्लियर टाइम फ्रेम कर दिया गया है
a response to the demand for quality basis education all over the country. इससे पूरे विश्व में, पूरे देश में जो एजुकेशन होती है, बुनियादी शिक्षा है, उस सभी को उत्तरदायित्व मिल जाता है. An opportunity for promoting social justice through basic education. बेसिक एजुकेशन प्राप्त करने के लिए एक मौका प्राप्त हो जाता है. An expression of political will for universal elementary education across the country. कंट्री के लिए जो पॉलिटिकल यानी कि जो राजनीतिक इच्छा होती है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन की, उसका एक्सप्रेशन हो जाता है. अ पार्टनरशिप बिटवीन द सेंट्रल स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट. सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में पार्टनरशिप होती है. एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टेट्स टू डेवलप देयर ओन विजन एंड फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन. और स्टेट्स को एक मौका मिल जाता है ताकि वो खुद की इच्छा, खुद का जो लक्ष्य है एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर, उसको पूरा कर सकें. The main objectives for the program areas follow. इसके main objectives क्या हैं? To provide useful and elementary education for all children in the 6 to 14 age group. जो 6 से 14 साल की आयु वाले बच्चे हैं, उन सभी को यूजफुल और एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना. To bridge social, regional and gender gaps with the active participation of the community in the management of school. यानी स्कूल मैनेजमेंट में ब्रिज सोशल, रीजनल और जेंडर गैप्स को खत्म करना. To allow children to learn about and master their natural environment in order to develop their potential. बच्चों को एक ऐसी अनुमति प्रदान करना जिससे कि वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में सीख पाए. To inculcate value based learning that allows children an opportunity to work for each other's well-being. एक दूसरे के लिए काम कर सकें. To realize the importance of early childhood care and education to and looks at the 0 to 14 age as a continuum. Right to free and compulsory education. जैसा भी हमने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ा, ऐसे ही है अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का अधिकार. The right of children to free and compulsory education Act 2009 came into force on 1st April 2010. जो राइट, शिक्षा का अधिकार है बच्चों के लिए, ये 2009 में पास हुआ था, लेकिन उसको अपनाया 1 अप्रैल 2010 से गया. बाय दिस एक्ट, और इस एक्ट के द्वारा एवरी चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years will be provided free elementary education in a suitable classroom in his neighborhood. यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो हर बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में है, उन सभी को फ्री शिक्षा प्रदान की जाएगी और उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग क्लासरूम प्रोवाइड किया जाएगा. The government will bear all costs during this period so that every child could complete 8 years of schooling. गवर्नमेंट क्या करती है, इसकी सारा खर्चा उठाती है जब तक कि वो बच्चा अपने 8 साल स्कूल के पूरे नहीं कर लेता. The expenditure of implementation of this act is shared by center and state government in the ratio of 65-35. Bill is 1910 for northeastern states. Children with special education needs shall also be admitted in regular school. Thus, right to education is a fundamental right now. जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल एजुकेशन नीड की जरूरत होती है, उनको भी रेगुलर स्कूल में एडमिटेड लेने की परमिशन दी गई और उनको शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया, एक बुनियादी आधार, एक अधिकार बना दिया गया है. The rules of the RTE Act were amended in February 2017 to include subject-wise learning outcomes till class 8th. Thereby emphasizes the importance of quality education. जो रूल आया RTE का 2017 में, उसने क्या किया, उसने सब्जेक्ट वाइज लर्निंग को भी उसमें शामिल कर लिया. वाटर मैनेजमेंट एंड इरिगेशन यानी कि जो जल का प्रबंध होता है और जो सिंचाई होती है उसके लिए. The state government builds the maintains water treatment plant and supply system to distribute clean drinking water to the people. In case of water crisis, it supplies water through tankers, then providing accurate water supplies to industries and constructing proper sewage system for waste management. The public health engineering department of each state undertakes the task while the local self-government bodies maintain the system. जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसने क्या किया है, उसने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और सप्लाई सिस्टम के लिए जो लोगों को पानी जाता है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और सप्लाई सिस्टम को बनाया है. और अगर वाटर की कभी कमी हो जाती है तो वो किससे थ्रू करते हैं, थ्रू टैंकर्स वो वाटर सप्लाई करते हैं. जो फैक्ट्री, उसके बाद में फिर वो फैक्ट्रीज को पानी सप्लाई करते हैं और उससे जो निकलने वाला वेस्ट होता है उसको भी मैनेज करते हैं. To provide water for irrigation, सिंचाई के लिए जब वो पानी प्रदान करते हैं, the state government builds dams, wells, canal, reservation, etc. and the local self government maintain it. जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या बनाती है,
डैम, वेल, कैनल और रिजर्वर्स, और जो लोकल गवर्नमेंट है वो उसको मेंटेन करती है। The state government also encourages farmers to form association for building and maintaining small irrigation works. जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसानों को एनकरेज करती है कि वो अपनी जो सिंचाई है उसको मेंटेन करें और उसके लिए एसोसिएशन बनाएं। इन एरिड ड्रॉट प्रोन एरियाज द स्टेट गवर्नमेंट फ्रेम्स पॉलिसीज टू मैनेज अवेलेबल वाटर रिसोर्स इन द स्टेट। जो सूखे एरियाज होते हैं उनमें स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एक पॉलिसी मैनेज करती है और उनको उपलब्ध पानी की पूर्ति कराती है। वन गुड एग्जांपल ऑफ सच एज वाटर मैनेजमेंट स्कीम इज जल यज्ञ इम्प्लीमेंट इन द ड्रॉट एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आंध्र प्रदेश के एरिया में जल यज्ञ योजना। इस स्कीम के अंतर्गत क्या होता है, वाटर कन्वर्जन प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन और रिवर्स एंड द प्रोविजन टू वेल इंप्रूवमेंट्स इरिगेशन सिस्टम लाइक द लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। वेयर अ रिवर, जब भी एक रिवर फ्लोज इन मोर देन वन स्टेट, एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में बहती है, the government of the states concerned into then format agreement to share the river water for irrigation and other purpose। तो जो लोग होते हैं, जो शहर की गवर्नमेंट होती है, वो आपस में समझौता कर लेती है कि वो उस नदी से सिंचाई है उसको अलग पर्पस के लिए यूज कर सकती हैं। इन्फोबिट्स है, फाइंड आउट मोर अबाउट द लाइफ इरिगेशन सिस्टम एंड प्रिपेयर अ राइट अप। लैंड रिफॉर्मर्स और हाउसिंग स्कीम। लैंड रिफॉर्मर्स आर इंपॉर्टेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट। जो लैंड रिफॉर्म होती है वो एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विकास होता है किसी स्टेट के लिए। ऑलमोस्ट ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया हैव पास्ड वेरियस लैंड रिफॉर्म्स। लगभग जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है भारत में उन सभी के पास में अलग अलग प्रकार के लैंड रिफॉर्म्स हैं। लैंड रिफॉर्म इंक्लूड redistributing land among people and schemes for utilization of water lands for cultivation, buildings of roads and other infrastructures. Sometimes used lands are created for establishing industries. कभी कभी जो लैंड है उनका प्रयोग क्या किया जाता है, कल्टीवेशन के लिए किया जाता है, रोड बनाने के लिए किया जाता है, फिर और भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए किया जाता है। कभी कभी उनका प्रयोग इंडस्ट्रीज बनाने के लिए किया जाता है। A successful land reform program in our country was the Operation Varga implemented in West Bengal in 1977। हमारे देश का एक सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम जो था वो था बरगा ऑपरेशन, जो कि वेस्ट बंगाल में 1977 में चलाया गया। द प्रोग्राम रिजल्टेड इन मोर इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग लैंडलेस फार्मर्स। इससे क्या हुआ, जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनके पास में भी लैंड आ गया। इन सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में लो कॉस्ट हाउसिंग इज बीइंग फॉर पीपल बिलोंगिंग टू लो इनकम आर बीन एंटर्ड। कुछ स्टेट्स में क्या होती है कि स्कीम होती है कि जो लोग घर अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए वो घर बनाते हैं। अंडर सच स्कीम, इन स्कीम के अंदर हाउसिंग हैज बीन प्रोवाइडेड टू अफोर्डेबल कॉस्ट टू लो इनकम हाउसहोल्ड इन अर्बन एरियाज। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं उनको लो कॉस्ट में एक घर मिल जाता है। थिंक एंड आंसर आपको सोचना है, आंसर करना है। फर्स्ट, व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान? सर्व शिक्षा अभियान क्या है? आई स्कीम फॉर एजुकेशन। राइट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैंने आपको इतने सारे प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे, आप उनमें से कोई भी दो लिखेंगे। राइट टू ड्रॉबैक्स ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। फर्स्ट डर्टी और सेकंड डिसऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट इज रिसोर्स allocation to the process of assigning and managing resource like time, money, etc. Animal husbandry, a branch of agriculture concerned with animals that are raised for meat, fiber, milk, or other products. Universalization, process of homogenization towards the topic idea of universal unity and an obligation to the presuppositions of universality. Next is quick brush up. First point is the collective wealth of a country is termed as its resource, which can be natural materials and human beings. Next point is state government has to bring about a higher rate of economic growth. Next, health means the ability to remain free of illness and injuries. Next, private healthcare services have increased tremendously in the past few years. Land reforms are important for the development of a state. Next is directive principles of state policy are guidelines given to the central and state government to bring about more money from taxes, education for adults, fair and just society. None of these. Fair and just society. Under the right to education, children of the 6 to 14 age group get free color television, admission to college, 8 years of elementary education. The answer of this, 8 years of elementary education.
Factors that contribute towards good health are good education, good values, good sanitization. Good sanitization. The collective wealth of a country is termed at its resources. Filling the blanks. First is the primary function of any government is to make assessment of the available resources. A state government works on the guidelines formed to frame laws and policies. Council of Ministers take most of decisions related to the resources of a state. And all the branches of administration follow the said procedures as mentioned in the constitution. Next, wealth means the ability to remain free of diseases. Next is short answer type questions. First step, what do you mean by health? Let's see the answer of this question. Health means the ability to remain free of illness and injuries, but health is not only about diseases, clean drinking water, good and sanitation, hygiene and pollution free and the stress free environment for factors that contribute towards good health. Next question देखते हैं. What are the directive principles of state policy? Let's see the answer of this question from chapter. Some of the directive principles of state policy are as follows. First, जिसमें आपका first point है, second point, third point और fourth point. Next question देखते हैं. Who constitute the Blaze Health and Sanitation Samitis? Let's see the answer of this question from chapter. The answer of this question from आप इसका आंसर लिखेंगे. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एसएसए? लेट्स सी द आंसर. इसमें आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना है सर्व शिक्षा अभियान वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू लैंड रिफॉर्मर्स इंक्लूड? लेट्स सी द आंसर. लैंड रिफॉर्मर्स से आप लिखेंगे एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज तक. नेक्स्ट है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस द वर्क डन बाय ब्लेज हेल्थ एंड सैनिटेशन समितिस इन रूरल एरियाज. इसका आंसर आप लिखेंगे. एवरी समिति गेट्स अ ग्रांट से लेकर इंटरनल पेंटिंग ऑफ रिजर्वियर्स तक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ इज द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड विद पब्लिक हेल्थ? From which state implements to promotion of healthy lifestyle? How do land reformers contribute to economic and social development of a state? इसमें आप लिखेंगे सक्सेसफुल से लास्ट तक हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज. लेट्स सी द नेक्स्ट. नेक्स्ट है हमारी स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज जिसमें फर्स्ट है थिंक बियॉन्ड एंड आंसर. आपको सोचना है और आंसर करना है. NGOs are playing an important roles in implementing government policies. How? Next, education is placed in the concurrent list. Why?
प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया गया है, ट्राई टू विजिट और डू रिसर्च ऑन एन एनजीओ इन योर सिटीज, find out the issues they deal with, the how they are bringing about a change. Next activity time, organize and participate in the group discussion on the topic how can we contribute in Swachh Bharat Abhiyan constructively. Thank you students.